Uh, Today we are going to discuss the book of James. We are going to discuss on the topic of James, and it is a very small chapter, but it is a very powerful chapter. And this is a letter. James is the author of the book, which is James. And James is a brother of Jesus. He was a step brother of Jesus. We can find him in Matthew 13 55, Mark 6, chapter 3, chapter 6, verse 3, Galatians chapter 1, verse 19. So the book of James, it has 5 chapters, and it has 108 verses. And in the first chapter, it has 27 verses. In the second, it has 26. In third, it has 18. Fourth, it has 17. And in the 5th chapter, it is 20. It is between Hebrews and First Peter. It is the 59th book of the Bible and 20th book from the New Testament. And James is writing this book to all of us, uh, uh, to the 12 tribes and all of us. And in James, here is the repeated words, and the wisdom is repeated 4 times in the Bible, in the book of James. And tongue is repeated 4 times, word repeated 5 times, perfect is repeated 6 times, lust is repeated 6 times, and temptation 7 times, patient 8 times, work 13 times, my brethren 15 times, and faith. So the book of James talks a lot about temptation, works, and wisdom, tongue, word, perfect, all of this. James has written this book. He has written this book very lovingly for us. He has used the word my brethren. He has used this word as mere bhaiyo, and that's why he has written this book very lovingly. And in the if we see the chapter 3, from 3 to 4, he's using strict languages, like he addresses hey adulterers, hey adulteresses, hey sinners, hey double-minders, and oh vain man, etc. And in this James, we find that he writes about the biased people or discrimination between rich and poor, and the we should do work. We should show our faith with our works and not only uh, with our how we hear. He uses rhetorical questions, and he uses lot of examples from Old Testaments and statements, commandments about God. In the James, he has written that God gives wisdom liberally to all men who ask him in faith. Let's open our Bibles to James chapter 1, 5. James chapter 1, 5. It says, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given to him. So God is telling that if any of you will ask him with faith, wisdom, he will give to all the men, not only to one, but all the men. In the second, it's saying that God will give the crown of life to them that love him, to them that endure a temptation. So God is telling that who will endure the temptation, God is going to give the crown of life. The third is saying that God does not tempt anyone and cannot be tempted. Uh, in the verse, chapter 1, 3, we see that let no man say when he is tempted, I am tempted of God, and for God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Because uh, बहुत बार ऐसे होता है ना कि हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, तो हम लोग ज्यादातर गॉड को ब्लेम करते हैं कि ये टेम्पटेशन हम लोग को गॉड से मिला होगा, गॉड हम लोग को टेम्प्ट किया होगा, या फिर हम लोग बस ब्लेम करने लगते हैं गॉड को। लेकिन बाइबल क्या कहता है कि हम लोग को गॉड टेम्प्ट नहीं करता है। गॉड क्या बोलता है कि अगर तुम एंड्योर करते हो टेम्पटेशन को,
तो गॉड हम लोग को क्या देगा? द क्राउन ऑफ लाइफ, ठीक है। और ये भी बोलता है कि टुवर्ड्स 13 इट ऑल्सो सेज दैट गॉड कैन नॉट बी टेम्प्टेड विथ evil, एंड गॉड कैन नॉट बी टेम्प्टेड बिकॉज गॉड इज गॉड एंड nobody कैन टेम्प्ट गॉड, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि हियर इट इज रिटन गॉड इज गिवर ऑफ ऑल गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट्स, ही इज द फादर ऑफ लाइट्स। तो हम लोग क्या देखते हैं कि गॉड हम लोग को ऑल द गुड और परफेक्ट गिफ्ट्स देता है क्योंकि वो हम लोग का फादर है, ठीक है। नेक्स्ट वी सी दैट गॉड begets us of his own will and the word of truth and we should be kind of his first fruit of creation। तो गॉड अपने विल से हम लोग को अपना माना है और अपने अपने वर्ड से हम लोग को अपना माना है और हम लोग को फर्स्ट फ्रूट कहलाता है अपना सारा क्रिएचर सबसे, ठीक है। द नेक्स्ट इज गॉड has chosen the poor of this world and the rich of faith and fear of the kingdom। Here it says that God has chosen the poor of this world to be rich in faith। क्यों क्यों ऐसा क्यों लगता है कि गॉड पोर को चूज किया है? क्योंकि रिच लोग क्या होते हैं कि काफी रिच लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं या फिर बहुत बहुत कुछ करते हैं और ज्यादा फेथफुल गॉड पे नहीं रहते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि गॉड हैज चोजन द पोर ऑफ दिस वर्ल्ड टू बी रिच इन फेथ, क्योंकि पोर लोग हम्बल होते हैं और वो लोग फेथ पे आगे बढ़ सकते हैं इसलिए। And next it says that God draws near to them that draws near to him। तो अगर हम लोग गॉड की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो गॉड हम लोग के तरफ दो कदम बढ़ाएगा, क्योंकि हम लोग को गॉड कभी फोर्स नहीं करता है कि मेरे पास आओ, ऐसे करके फोर्स नहीं करता। गॉड चाहता है कि हम उनके पास जाए बट गॉड नेवर फोर्सेस अस। सो ही लेट अस ओनली डिसाइड दैट when we draw near to him he will draw near to us। then it says that God lifts up the humble। गॉड लिफ्ट्स अप द हम्बल। क्यों गॉड लिफ्ट करता है हम्बल को? हम लोग देखेंगे 4 जेम्स 4 का 10 में। इट सेज humble yourself in the sight of the Lord and he will uplift you। किस हम लोग humble वर्ड देख रहे हैं यहाँ पे। what is humble? who are humble people? who are humble people? humble people वो होते हैं जो uh, अपने आप को प्राउड फील नहीं करते हैं, अपना अपना ही बुरा अपना ही तारीफ नहीं करते हैं, सिर्फ दूसरा लोग का भी बात सुनते हैं, दूसरे लोग को अपने से आगे बढ़ने देते हैं, जो सबसे लविंगली रहते हैं, सबसे काइंड रहते हैं, उनको बोलते हैं हम्बल। तो गॉड बोलता है कि जो अगर हम्बल रहेगा, हु द हम्बल पीपल गॉड विल लिफ्ट देम अप, ऐसे करके बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद वहां पे बोला उसके बाद है गॉड इज द लॉ गिवर। अब हम लोग देखेंगे chapter 4 का 12। It says, there is one lawgiver who is able to save and to destroy। Who art thou that judges another? So God is only the lawgiver। We are nobody to judge anybody or anyone। तो गॉड ही हम लोग का लॉ गिवर होता है और गॉड ही हम लोग को जज करेंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट वी डू इन आवर लाइफ। Yeah, the last one it says, the Lord is very pitiful and tender mercy। Third, द वर्ड इज पिटीफुल। पिटीफुल मतलब क्या होता है कि गॉड को हम लोग को उन लोगों के ऊपर तरस आता है, उनको बुरा लगता है हमारे ऊपर। जब हम कुछ सिन करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि गॉड गॉड को गुस्सा आता होगा, बट गॉड को गुस्सा नहीं आता, उनको पिटीफुल फील होता है हमारे लिए, उनको तरस आता है, बुरा लगता है कि मेरे बच्चे लोग कितने दूर चले गए मेरे से, ऐसे करके। तो द लॉर्ड इज वेरी पिटीफुल एंड टेंडर मर्सी। अगर हम लोग गॉड के पास जाते हैं, विल आस्क द फॉरगिवनेस टू हिम, देन ही विल forgive us because he has mercy for us। These are the one-liners in the book of James। First one it says, the trying of your faith produces patience। तो अगर हम लोग faith try करते हैं तो हमें हमें patience भी मिलता है, ठीक है। The second one it says that the double-minded man is unstable in all ways। Who are the double-minders? The double-minders are the one who go to church also and they are in the worldly pleasures also। और सारा worldly things करते हैं। जैसे कि for example for this is we go to church every Saturdays, right? So we go to church and then after we come home we start scrolling the reels or we start seeing the Instagram।
तो इसको क्या बोला जाता है, इसको एक डबल माइंडेड मैन बोला जाता है। तो हमें डबल माइंडेड मैन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो हम लोग को अनस्टेबल बनाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज whosoever shall keep the whole law yet offend in one point, he is guilty of all. Let's turn our Bibles to chapter 1, 27. It says that a pure and undefiled, a pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction and keep himself unspotted from the world. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अ प्योर रिलीजन, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ऐसे किसी के पास जाना है, ऐसे किसी को विजिट करना है, फादरलेस हो, विडोज हो, और जिसको हमारा जरूरत, ठीक है। उसके बाद देखा उसके बाद लिखा हुआ है कि there is faith without work is dead. Faith without work is dead. Let's turn our Bibles to chapter 2, verse 20 and 26 to 26. इधर हम लोग को एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। Here it is given an example of Abraham. Abraham, we find him in the Old Testament. Here he shows his faith through his actions. He shows his faith. He sacrificed his son Isaac on the altar, and he showed his faith through his actions. तो फिर हम लोग को भी Abraham की तरह, we should take the example of Abraham, and we should have faith in God, and we should show our faith through our actions, because faith without work is dead. Yeah. The next one is the tongue can no man tame, and is an unruly evil full of deadly poison. तो जब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो टंग है, जो हमारा जीव है, वो हमारा सबसे छोटा चीज है ना, सबसे छोटा है, बट उसके पास एक ताकत होता है, इतना बड़ा ताकत होता है कि इट मे लीड अस टू सो मेनी सिंस, है ना। क्योंकि हम लोग सारा चीज क्या से करते हैं, अपने टंग से करते हैं। जैसे कि जैसे कि हम लोग किसी के बारे में गॉसिप करते हैं, किसी को जज करते हैं, किसी के बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, किसी से सेल्फिश फील करते हैं, वो सब क्या से होता है, टंग से होता है। तो अगर हम लोग को कंट्रोल नहीं होगा अपने टंग पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को बहुत सारा हम लोग बहुत सारे सिन सिन की तरफ चल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को बिफोर वी स्पीक वी शुड थिंक, एंड वी शुड हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल आवर टंग, जिससे हम लोग क्या गलत है क्या सही है वो जान सके, और हम लोग बहुत सारा सिन से बच सकते हैं। जिसको अपना टंग पे कंट्रोल होता है, उसको अपने बोल सकते हैं अपने पूरी बॉडी पे कंट्रोल होता है, and it will save us from so many sins. Okay? From the next one, it says, where envying and strife is, there is confusion and every evil work. तो अगर हम लोग के दिल में किसी के लिए जेलस या सेल्फिश फील होगा, तो उसका मतलब क्या है कि वो एक इवल वर्क, ठीक है। हम लोग को हम लोग को एक इवल स्पिरिट से ऐसा फीलिंग्स अभी आता है, ठीक है। देन the next one is the fruit of righteousness is sown in peace, and of them that make peace. The fruit of righteousness is sown in peace. तो हम लोग को क्या बनना है, पीस मेकर बनना है, ठीक है। The next one is the friendship of the world is enmity with God. The friendship of the, देखो, अगर कोई भी फ्रेंडशिप करता है वर्ल्ड से, तो वो लोग ऑटोमेटिकली क्या करता है, गॉड का एनिमी बन जाता है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंडशिप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या, जैसे बहुत कोई ये दुनिया में सारे कोई दुनियादारी में पड़े हुए हैं, दे आर फ्रेंड्स विद द वर्ल्डली थिंग्स, लाइक दे वांट टू लिसन सेक्युलर सॉन्ग्स, दे वांट टू वॉच मूवीज जिसमें बहुत ज्यादा फाइट इन्वॉल्व होता है, और बहुत सारा चीज जैसे दिखावटी या फिर प्राउडनेस बोल सकते हैं। तो ये सब क्या में आता है, वर्ल्ड में आता है। तो इसको क्या बोला जाता है, फ्रेंडशिप ऑफ द वर्ल्ड, जो which is enmity with God. Yeah. The next one is God resists the proud but give grace to the humble.
तो गॉड क्या करता है, गॉड रेसिस्ट करता है प्राउड को, क्योंकि गॉड को कभी प्राउडनेस पसंद नहीं आता है। हम लोग को प्राउड फील नहीं करना चाहिए, एंड गॉड गिव्स द ग्रेस टू द हम्बल पीपल। तो हमें कैसे बनना चाहिए, हम्बल पीपल की तरह बनना चाहिए। To him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is a sin. ये लास्ट लास्ट वन इज वेरी पावरफुल वर्ड, बिकॉज इट सेज कि अगर तुमको पता है कुछ चीज कि ये सही है, पर फिर भी तुम वो चीज अगर तुम नहीं कर रहे हो, तो उस वो क्या होता है, वो एक सिन होता है। तो अगर हम लोग कुछ सोच रहे हैं या किसी के बारे में सोच रहे हैं कि पता है हमें कि ये सही है, और वो चीज अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो इट इज अ सिन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। दिस इज नेचर एंड मेटाफर्स यूज्ड इन जेम्स। ठीक है, ये सारा एग्जाम्पल दिया गया है नेचर से in the book of James. So I'm gonna just read. He that doubts is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. The second one is the rich shall pass away as the flower of the grass. The sun is so sooner risen with the burning heat, but it withers the grass and the flower thereof falls. Then we put a bit in horses' mouth that they may obey us, and we turn about their whole body. The next one is for every kind of beast and the birds and the serpents of things in the sea is tamed, but the tongue can no man tame. How great a forest is set ablaze, but by such a small fire. Doth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter? Can a fig tree bear olive berries? Either a vein figs, either a fountain yield salt water and fresh. The last one is, what is life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanishes away. These are the examples used in the James from the nature. Next, move to the next one. This is the illustration used in the James. Okay, so the first one we find in James chapter 2 from verse 2 to 4, और ये example बोलता है कि if you see if you see if you see a man who is wearing nice clothes, and he is wearing full jewelries, and he is looking very good, and you see the poor man, okay, he is coming ऐसे नॉर्मल सा कपड़ा पहन के, और फिर उतना रेडी नहीं हुआ है, वो ज्वेलरी भी नहीं पहना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली आवर अटेंशन विल गो टू द रिच मैन, राइट? So we will try to give him the best place there, and we will make him to sit there. But what we'll do to the poor, we will uh, automatically ignore them, and we will tell him to sit in front of our foot, or फिर we will tell him to stand in the corner. तो ये हमारा क्या होता है कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा हम लोग बहुत बायस्ड है, हम लोग बहुत पार्शियलिटी करते हैं, हम लोग सबका अपीयरेंस से देख के उसको जज करते हैं। तो यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन जेम्स बोलता है कि क्योंकि जेम्स टॉक्स अ लॉट अबाउट द रिच एंड द पुअर, और जो डिफरेंशिएट यहाँ पे किया गया है कि हम लोग ज्यादातर देखते हैं आउटवर्ड अपीयरेंस कि वो कैसे कपड़ा पहना है, वो क्या किया है, एंड तो वही हम लोग को बताता है कि हम लोग को वी शुड नॉट जज द पीपल बाय देयर अपीयरेंस, बस हम लोग को नहीं करना चाहिए। The second one is telling he the second one is telling about the work that we should do. Not only we should show the faith, but we should also do the action. तो बोला क्या है कि अगर तुम किसी को देखते हो कि जिसके पास अच्छा कपड़ा नहीं है, दे डोंट हैव इनफ फूड टू ईट, और फिर उसके पास उतना कुछ नहीं है, तो तुम उसके पास जाते हो और उनको बोलते हो
कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम अच्छा से रहो, ऐसा करके बोलते हैं, बट हेल्प नहीं करते हैं उनको। तो वो क्या हो जाता है कि तुम बस बोल रहे हो, अपना फेथ एक्शन पे नहीं शो कर रहे हो। तो वही सेकंड इलिस्ट्रेशन बोलता है कि तुम अपना फेथ को एक्शन पे शो करो। तुम उसको हेल्प कर सकता था कुछ दे के, इंस्टेड ऑफ सेइंग और बोल के कि अच्छे से रहो, ऐसा करो वैसा करो, हम लोग उसको हेल्प कर सकते हैं। मे बी ही कैन प्रोवाइड हिम द गुड वाटर, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये इलिस्ट्रेशन जेम्स यूज करता है द बुक ऑफ जेम्स में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एनालॉगस यूज इन जेम्स। The first one is, for if any be hearer of the word and not a doer, he is like a man who look intently and at his natural face in the mirror, for he looks at himself and goes away, and yet once he forgets what he was like. तो यहाँ पे बोलता है कि हम लोग को बस एक हियरर नहीं बनना है, बट हम लोग को क्या बनना है, एक डूअर भी बनना है। हम लोग किस तरह है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक इंसान है जो एक मिरर दिखता है, ठीक है। ही सीज अ मिरर, ही सीज हिमसेल्फ एंड देन ही फॉरगेट्स हिज फेस। तो हम लोग भी एक उसी तरह है, हम लोग अपने चेहरा देखते हैं और भूल जाते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, हम लोग को सिर्फ सुनना नहीं है, हम लोग को वो करके भी दिखाना है। जैसे कि हम लोग एक, फॉर एग्जाम्पल हम लोग चर्च जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग चर्च जा रहे हैं, वहां पे हम लोग सर्मन सुने कि सर्मन में था कि वी शुड बी काइंड टू अदर्स, वी शुड बी गुड टू अदर, वी शुड हेल्प ईच अदर, ऐसा था सर्मन में। और हम लोग चर्च में सोचे कि ठीक है, हम लोग अब, ठीक है हम लोग ऐसे बनेंगे, वी विल इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ। पर जैसे हम लोग एक बार चर्च से बाहर निकल गए, तो हम लोग सब कुछ भूल गए। सब कुछ भूल गए कि हम लोग सर्मन में ये सुने थे, ये करते, ऐसे होता है ना बहुत कोई के साथ। तो वही चीज लिखा हुआ है कि हम लोग को एक हियरर नहीं बनना है, पर हम लोग को एक डूअर बनना है। हम लोग जो सुनते हैं उसको हम लोग को करना भी है। द सेकेंड वन इज, look at the ships, though they are so large and are driven by the strong winds, they are guided by a very small rudder, uh, wherever the will of the pilot directs, so also the tongue. तो यहाँ पे बोला जाता है कि शिप को देखो कितना बड़ा है, ठीक है, वो इतना बड़ा है, और फिर वो अपने से जाता है, विंड से जाता है, लेकिन उसका उसका उसको डायरेक्ट कौन करता है, एक पायलट करता है ना। तो वैसे ही हम लोग का टंग है, हम लोग का टंग हम लोग को डायरेक्ट करता है अपने लाइफ में, कि कैसे हम लोग अपना टंग को यूज करते हैं। बिकॉज हम लोग का टंग को अगर हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम लोग का पूरा बॉडी भी कंट्रोल हो जाता है, और हम लोग को वो हेल्प करता है टू सिन अगेंस्ट गॉड। The next one is, see how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it, until he receives the early and the later rains. He also be patient until the coming of the Lord. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है फार्मर का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक फार्मर कितना मेहनत करता है अपना अ, धान रोपने में और फिर उसको उगाने में, कितना मेहनत करता है, और फिर वो कितना पेशेंटली वेट करता है कि वो धान एक बार उगेगा। अ, तो तो फिर हम लोग को भी एक वैसे ही बनना चाहिए, हम लोग को भी वैसे ही पेशेंट, एक फार्मर, वी शुड टेक द एग्जांपल ऑफ फार्मर, और हम लोग को भी वैसे वैसे ही पेशेंट रखना चाहिए गॉड के ऊपर, जब तक गॉड वापस आते हैं तब तक। ओल्ड टेस्टमेंट कैरेक्टर्स इन जेम्स, यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, दिस आर द एग्जाम्पल्स टेकन फ्रॉम द ओल्ड टेस्टमेंट इन फॉर द बुक ऑफ जेम्स। जेम्स ये सब एग्जाम्पल लिया है हम लोग को समझाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले अब्राहम, राहब, जोब, एलाइजा। तो वी हैव ऑलरेडी सीन कि अब्राहम कैसे अपना फेथ अपने एक्शन के द्वारा दिखाया दिखाया था, हाउ ही शोड हिज फेथ थ्रू हिज एक्शन। एंड द सेकंड वन इज राहब, ठीक है। राहब वाज अ प्रोस्टिट्यूट, बट शी हेल्प द पीपल टू हाइड देम, राइट। तो वो भी एक कौन थी, वो भी एक फेथफुल सर्वेंट ऑफ गॉड थी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज जोब। जोब इज एग्जाम्पल
एग्जाम्पल जैसे कि जोब, हम लोग जोब का स्टोरी में देखते हैं कि जोब कितना सफर करता है अपने लाइफ में, लेकिन वो पेशेंट रखता है अपने लाइफ में। कि वो ऐसे नहीं करता है कि अरे हम इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं, गॉड हमको क्यों ऐसे सफर करा रहा है। जैसे हम लोग गॉड को ब्लेम करने लगते हैं हर चीज के लिए, कि क्यों हमारे साथ, क्यों, या फिर जल्दी जल्दी ठीक कर दो ये जितना भी प्रॉब्लम है, ऐसे करके हम लोग सफर करते हैं। तो हम लोग गॉड को बोलते हैं ना कि जल्दी सब कुछ ठीक कर दो। पर वी शुड टेक द एग्जाम्पल ऑफ जोब। वो कितना पेशेंट था, वो गॉड को नहीं बोल रहा था कि ये क्या हो रहा है ऐसा ऐसे करके। वो नहीं बोल रहा था, वो पेशेंट रखा था, है ना। तो वी शुड बी लाइक जोब, वी शुड हैव द पेशेंस। एंड देन द लास्ट एग्जाम्पल इज एलाइजा। एलाइजा prayed to God, एंड ही वो उस पर पूरा फेथ रखा था गॉड के ऊपर। और फिर 6.5 years के बाद बारिश आ जाता है वहां पे, क्योंकि ही प्रेड विथ हिज फेथ। दिस आर द यूनिक phrases from each chapter. First one, it says that if anyone thinks he's religious, does uh, and does not bridle his tongue, but deceives his heart, the person religion is worthless. So it's telling that जो अपने आप को समझता है कि वो रिलीजियस है, और वो अपने टंग को कंट्रोल करने नहीं सकता है, बट वो डिसीव करता है सबको को, उसका रिलीजन क्या है, वर्थलेस है। ठीक है। तो हम लोग को ये द बुक ऑफ जेम्स टॉक्स अ लॉट अबाउट द टंग। और वो हमें हमेशा सिखा, वो हम जेम्स में ज्यादातर यही सिखा रहे हैं कि हाउ टू कंट्रोल आवर टंग। इसमें वो ये सिखाता है कि अगर तुम रिलीजियस मानते हो अपने आप को, बट तुमको कंट्रोल नहीं है अपने टंग पे, तुम बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी बोलते हो, और तुम दूसरे को डिसीव करते हो, तो फिर वो रिलीजन क्या है, वर्थलेस। द नेक्स्ट वन इज, you believe that there is one God, you do well. The devil also believe and tremble. This verse is also very powerful word, because क्या, इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम लोग गॉड पे बिलीव करते हैं, ठीक है। और सेटन भी क्या करता है, गॉड पे बिलीव करता है। तो हम में और सेटन में क्या डिफरेंस है? जब हम भी गॉड पे बिलीव कर रहे हैं, सेटन भी गॉड पे बिलीव, उसको मतलब उसको पता है कि गॉड है, और वो बिलीव करता है कि गॉड है, इसलिए वो ट्रेम्बल करता है, इसलिए वो डरता है। तो तो डिफरेंस क्या है हम में और गॉड में? हम में और सॉरी सेटन में क्या डिफरेंस है? वो भी बिलीव कर रहा है, हम भी बिलीव कर रहे हैं। डिफरेंस ये है कि हम लोग अपने फेथ से, या अपने एक्शन से, या हम लोग अपने हम्बलनेस से दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम सेटन। वो भी जानता है, हम भी जानते हैं, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी को हेल्प करके, या कोई भी छोटा छोटा बड़ा बड़ा चीज, और अपना वर्क्स अपने फेथ पे दिखा के क्या कर सकते हैं, हम लोग हम लोग सेटन से डिफरेंट बन सकते हैं। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation. इसमें लिखा गया है कि it's not easy to be masters, right? Verse 3 का, James verse 3 1 says it's not easy to be masters, because टीचर के पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और अगर वो एक चीज अगर गलत करता है, तो वो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो सुनते हैं टीचर्स का बात ना, जो बोल रहे हैं उसका उसका वर्ड्स को हम लोग समझते हैं, और हम लोग को लगता है कि वो सच है। तो इट्स नॉट इजी टू बी मास्टर्स या टीचर्स, क्योंकि वो हम लोग को उन लोग के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिससे हम लोग सुन के वैसे ही आगे बढ़ते हैं। वो लिखा गया है इसमें, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट वन इज, whosoever will be a friend of the world is an enemy of God. So we have seen this one, that whosoever will be the friend of God, who will uh, be friendly with the worldly things or worldly pleasures, they will be the enemy of God. ठीक है, ये है इसमें। देन तो वो वर्ल्डली थिंग्स क्या है, पर वो वर्ल्डली थिंग्स क्या है जो हम लोग को वर्ल्ड का फ्रेंड बना रहा है, और गॉड से एनिमी, गॉड का एनिमी बना रहा है? वो क्या है वर्ल्डली थिंग्स? एनी थिंग्स
any कुछ भी चीज, anything which does not involve God in our life, that is वर्ल्डली थिंग्स, वो चीज सब वर्ल्डली थिंग्स हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मूवीज, हम लोग बहुत सारे मूवीज देखते हैं ना, मूवीज में और सेक्युलर सॉन्ग्स, उसमें उसमें क्या होता है कि उसपे गॉड यूज नहीं होता उसमें, ज्यादातर हीरो हीरोइन ये सब का बात होता है, तो वो क्या हो जाता है, वो एक वर्ल्डली थिंग्स हो जाता है। तो हम लोग को हम लोग को सेक्युलर थिंग्स है, या जो हम लोग को चीज, जो चीज प्लेजर देता है, जो ये दुनियादारी का है, उससे दूर रहना चाहिए। और क्योंकि वो हम लोग को, अगर हम लोग दुनियादारी में फोकस करेंगे तो वो हम लोग को गॉड का दुश्मन बना देगा। इसलिए हम लोग ज्यादा फोकस रहना है टू बी क्लोजर टू गॉड। ओके, द लास्ट वन इज द इफेक्चुअल प्रिवेंट prayer of the righteous man availeth much। तो हियर इट सेज कि हम लोग का अपना जो फॉल्ट्स है या सिंस है उसको कन्फेस करना चाहिए एक दूसरे से, एंड वी शुड प्रे फॉर ईच अदर। Here, the instructions from James in chapter 1, जेम्स का चैप्टर 1 में what God says कि हम लोग को कैसा बनना चाहिए, ठीक है। The first one it says, count it all joy when ye fall into diverse temptation। तो हम लोग को, जब हम लोग टेम्पटेशन में फॉल करते हैं तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को जॉय काउंट करना चाहिए, राइट। हम लोग को जॉय काउंट करना चाहिए तो हम लोग टेम्पटेशन से निकलेंगे। When we hear the word temptation, what comes in our mind? हम लोग को जब टेम्पटेशन होता है, सबसे पहले तो हम लोग का दिमाग में यही चलता है ना कि जीसस वाज आल्सो टेम्प्टेड व्हेन ही वाज इन दिस वर्ल्ड, ही वाज आल्सो टेम्प्टेड। और जब सेटन उसको टेम्प्ट किया था तो व्हाट वाज हिज वेपन, उसका वेपन क्या था, कैसे जीसस टेम्पटेशन से निकला था। 3 times Satan tempted him and he said that it is written, it is written, it is written. It is written means it is from the word of God। तो वो, और वर्ड ऑफ गॉड क्या है, वो है होली स्क्रिप्चर्स, तो ही यूज द बाइबल एज अ वेपन। तो अगर हम लोग कभी टेम्पटेशन में है तो हम लोग क्या को यूज कर सकते हैं, द वर्ड ऑफ गॉड विच इज द बाइबल। तो हम लोग बाइबल यूज कर सकते हैं, हम लोग प्रे कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग प्रे करते हैं ना गॉड को कि हम लोग टेम्पटेशन में ना पड़े, ये सब हम लोग प्रे करते हैं, वैसे हम लोग को प्रे करना चाहिए और ये सब से हम लोग टेम्पटेशन से निकल पाएंगे, ठीक है। The second one is, let no man say I am tempted of God। क्योंकि हम लोग पढ़े ना 1 chapter 1 का 13 कि गॉड गॉड कभी किसी को टेम्प्ट नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है, वो बोलता है कि जो टेम्पटेशन को एंड्योर करता है उसको गॉड क्या देगा एज अ प्राइज। क्या लिखा हुआ था, अ, लिखा हुआ था द क्राउन ऑफ लाइफ देता है, ठीक है, गॉड उसको। तो ऐसे लेट नो मैन से आई एम टेम्प्टेड ऑफ गॉड, ठीक है, क्योंकि गॉड कभी किसी को टेम्प्ट नहीं करता है। उसके बाद द थर्ड वन इट सेज डू नॉट अर्र माय ब्रेथरन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गुस्सा मत करो मेरे भाइयों। तो हम लोग को गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे ये जो नेगेटिव वर्ड्स है, गुस्सा मत करो, टेम्पटेड, ये सब क्या से आता है, लगता है कि ये सब गॉड से आता है, नहीं ना। तो फिर ये सब क्या से आता है, इट कम्स फ्रॉम द इविल स्पिरिट और सेटन से आता है। तो फिर हम लोग को जो भी नेगेटिव चीज है उससे दूर रहना चाहिए, टू टू कम क्लोजर टू गॉड। यहाँ पे लिखा है डू नॉट एयर माई ब्रदर। द फोर्थ वन इज बी स्विफ्ट टू हियर, स्लो टू स्पीक, स्लो टू रैट। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को जल्दी सुनना है, लेकिन वी शुड बी स्लो टू स्पीक। द फिफ्थ वन इज पुट अवे ऑल filthiness and rampant wickedness। The sixth one is receive with meekness and engrafted word. Okay. Seventh में be doers of the word and not hearers only। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डूअर बनना है, हियरर नहीं बनना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम जेम्स चैप्टर 2, शो नो पार्शलिटी एज यू होल्ड द फेथ इन आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पार्शलिटी शो नहीं करना है, ठीक है। The second one it says that speak ye and so do as they that shall be judged by the law of liberty, ठीक है। Be not many masters। हम लोग सीखे ना कि हम लोग को
हमेशा मास्टर नहीं बनना है, ठीक है। कोर्ट में लिखा हुआ है, अ वाइज मैन शो आउट ऑफ हिज गुड कन्वर्सेशन हिज वर्क्स एंड नीटनेस ऑफ विजडम। क्योंकि उनको पता रहता है कि हम लोग कैसे विजडम पा सकते हैं गॉड से, जब हम लोग गुड कॉन्वर्सेशन करते हैं और हम लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं तब, ठीक है। द फिफ्थ वन इज ग्लोरी नॉट एंड लाई नॉट अगेंस्ट द ट्रूथ इफ ये हैव बिटर एनविंग एंड स्ट्राइव इन योर हार्ट्स। तो अगर हम लोग के दिल पे बुरा रहेगा किसी के लिए, तो हम लोग कैसे, हम लोग वही मुंह से गॉड को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, वही मुंह से झूठ बोल रहे हैं, और वही मुंह से किसी को गॉसिप कर रहे हैं या किसी को जज कर रहे हैं। तो अगर हम लोग के दिल पे वैसा थॉट्स रहता है या किसी के लिए बुरा बुरा फीलिंग्स रहता है, तो वो नहीं रहना चाहिए। Instruction from James chapter 3. It says that submit yourself to God. Yeah. यहाँ पे लिखा है सबमिट योर सेल्फ टू गॉड। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को सबमिट करना चाहिए अपने आप को गॉड को, ठीक है। सेकेंड वन इज रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। थर्ड वन इज ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। द नेक्स्ट वन इज क्लेंस योर हैंड्स ये सिनर्स। हियर जब जेम्स इतना अच्छा से ब्रदरन ब्रदरन यूज कर रहे थे, मेरे प्यारे भाइयों बोल रहा था, प्यार से बात कर रहा था, हम लोग को समझा रहा था कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो। उसके बाद वी सी फ्रॉम द चैप्टर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सिनर्स, ये डबल माइंडेड, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वो सीरियस हो गया है चैप्टर 3 से, और फिर वो सीरियसली बोल रहा है, क्लेंस योर हैंड्स। क्लेंस योर हैंड्स मतलब अपने जो भी काम कर रहे हो उसको क्लेंस करो। उसके बाद नेक्स्ट वन इज प्योरीफाई योर हार्ट बोल रहा है। ये हे डबल माइंडेड, प्योरीफाई योर हार्ट बोल रहा है। हम लोग को अपने हार्ट्स को प्योरीफाई करना है। हम लोग को अपने हार्ट पे नहीं सोचना है कि हम लोग काफी कॉमन है कि हम लोग बहुत कोई से अगर किसी को देखते हैं अपने से आगे बढ़ के या फिर कुछ भी, अगर इसका कपड़ा अच्छा है, मेरा कपड़ा, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को ज्यादातर वी फील जेलस फ्रॉम ईच अदर। तो फिर भी हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को प्योरीफाई करना चाहिए अपना हाथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन इज बी अफ्लिक्टेड एंड mourn एंड weep। एंड द चैप्टर 3 is also talking about the rich people। रिच पीपल, ये गुड न्यूज बाइबल में ज्यादातर लिखा गया है कि इट्स सेइंग, इट्स गिविंग द वार्निंग फॉर द रिच पीपल कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो बोल के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज लेट योर लाफ्टर बी टर्न इनटू मॉर्निंग एंड योर जॉय इनटू हैप्पीनेस। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर तुम किसी को देखते हो, ठीक है, अगर हम गॉड के बच्चे हैं और हम लोग किसी को देख रहे हैं कि कोई सफर कर रहा है, तो हम लोग को बुरा लगेगा ना। तो हम लोग, जब अगर हम लोग गॉड के बच्चे नहीं होंगे, अगर हम लोग किसी को देखेंगे तो हम लोग सोचेंगे, हम लोग हंसते रहेंगे, इधर उधर ऐसे घूमते रहेंगे। बट अगर हम लोग गॉड के बच्चे होंगे तो हम लोग को पता होगा कि टाइम बहुत लेट है, और गॉड के आने का टाइम हो रहा है, और वी विल नॉट लाफ अराउंड, बल्कि हम लोग एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। द नेक्स्ट वन इज हम्बल योरसेल्फ इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। हम लोग को हम्बल करना है गॉड के सामने, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज स्पीक नॉट इविल फॉर वन अनदर। वही हम लोग को कंट्रोल करना चाहिए अपना टंग को। हम लोग को एक दूसरे के बारे में इविल बात नहीं करना चाहिए। वी शुड प्रे फॉर ईच अदर, वी शुड कन्फेस आवर फॉल्ट्स एंड सिंस अगेंस्ट ईच अदर। जो भी हम लोग कुछ करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रे करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द लास्ट वन इज he ought to say if God, if Lord's will। तो it says that our life should be ऐसे कि अगर हम लोग कुछ भी करते हैं, ठीक है, कुछ भी करते हैं, हम लोग को बोलना चाहिए कि अगर गॉड का विल है तो ठीक है, इफ इट्स गॉड्स विल इट इज ओके, ऐसा करके हम लोग को बोलना चाहिए। अगर हम लोग कुछ मिल रहा है तो दैट इज गॉड्स ब्लेसिंग्स, और अगर हम लोग को कुछ नहीं मिलता है तो फिर वो हम लोग को क्या करता है, गॉड से प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी चीजें, क्योंकि हम लोग को नहीं पता चलता है कि क्या हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन गॉड को पता रहता है। और गॉड हमारे, भले हम गॉड से बहुत दूर चल जाते हैं कभी कभी, इतना बिजी लाइफ हो जाता है हम लोग का, हम लोग प्रे नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी गॉड हम लोग के साथ रहता है, और वो हमेशा हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। तो हम लोग का एक लाइफ कैसे होना चाहिए कि अगर हम लोग को हमेशा बोलना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो
इट्स गॉड्स विल, और ऐसे नहीं हो रहा है तो गॉड्स विल का ही है। इंस्ट्रक्शन फ्रॉम जेम्स चैप्टर 4, इट सेज बी पेशेंट, बी ए पेशेंट। हियर इट इज, दो बार बी पेशेंट लिखा हुआ है, तो हम लोग को पेशेंट रहना। हम लोग एग्जाम्पल देखे थे ना ऑफ द फार्मर एंड द जो, हम लोग ये लोग का एग्जाम्पल देखे थे, तो हम लोग को पेशेंट रहना है, ठीक है। then as a student establish your hearts, okay। उसके बाद next, judge not one against another, तो हम लोग को ग्रज भी नहीं रखना है। फिर लिखा है कि swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath, let your yea be yea and your nay be nay। so many times हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग swear करते हैं ना कि father promise, mother promise, God promise, but here it's clearly saying that swear not। हम लोग को swear नहीं करना है। if it is your yes we should say yes, and if it's your no we should say no। हम लोग को swear नहीं करना है। next one is saying if you are afflicted you should pray, if you are merry you should sing songs, if you are sick you should call for the elders of the church and let them pray। so many times if we are sick हम लोग क्या करते हैं कि we don't inform anyone, right? But in the Bible it says if you are sick then you should call the elders of the church and let him pray over you। the last one it says confess your faults to one another and pray for one another that you may be healed। तो हम लोग को एक दूसरे को कन्फेस करना है our faults, और हम लोग को एक दूसरे के लिए हमेशा प्रे करना है। Here it talks about the wisdom by faith, ठीक है। तो हम लोग के लाइफ में अच्छा चीज भी होता है, बुरा चीज भी होता है, तो हम लोग कैसे डिफरेंस करें कि अच्छा चीज क्या होता है, बुरा चीज क्या। जो भी बुरा चीज होता है वो सब क्या होता है, अर्थली थिंग्स होता है, सेंशुअल होता है, डेविलिश होता है। जैसे कि बुरा चीज में हम लोग को जेलस फील होता है ना, हम लोग कुछ भी बुरा, जैसे जेलस फील होना, सेल्फिश होना, ये सब क्या होता है, बुरा चीज होता है। तो ये विजडम हम लोग को गॉड से नहीं मिलता है, ये सब हम लोग को सेटन हम लोग के ऊपर हम लोग को ऐसा थॉट्स लेके आता है ताकि हम लोग ऐसा सोच सकें, ठीक है। तो हम लोग को कैसे हम लोग को पता चलेगा कि ये विजडम गॉड से है। गॉड हम लोग के लिए, गॉड हम लोग को ये विजडम दिया है, ठीक है। हियर आर सम ऑफ द पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज इफ pure, the second verse is the second point is peaceable, third is gentle, easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality, without hypocrisy। ठीक है, ये सब पॉइंट्स हैं जो हम लोग को गॉड से मिलता है, ठीक है। तो ज्यादातर जेम्स क्या रिच एंड पोर के बारे में बोला है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिच पीपल वांट बाय जेम्स। यहाँ पे रिच पीपल को जेम्स वांट करता है कि क्या हम लोग को करना चाहिए, क्या हम लोग को नहीं करना चाहिए, और फिर क्या गलत वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इट सेज द रिच ओप्रेस एंड ड्रॉ बिफोर जजमेंट सीट्स, दे ब्लास्फेमी एंड वर्दी नेम बाय विच ये आर कॉल्ड, ठीक है। ज्यादातर रिच पीपल क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ना, तो उनके बारे में लिखा हुआ है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने से किसी को कम को किसी के बारे में भी नहीं सोचते हैं। दे विल पास अवे लाइक अ फ्लावर ऑफ द ग्रास। यहाँ लिखा हुआ है कि जो रिच पीपल है दे विल पास अवे लाइक अ फ्लावर ऑफ द ग्रास। ग्रास का फ्लावर कैसा आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, तो फिर वैसे ही वो लोग भी चल जाएंगे, ठीक है। द रिच पीपल, फॉर द रिच पीपल इज सेइंग वीप एंड हॉल फॉर द मिजरीज दैट शैल कम अपॉन यू। तो बोल रहा है कि तुम रो, तुमको रो, तुम गॉड को फॉरगिवनेस मांगो कि जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो अच्छा नहीं होगा। लेट्स टर्न आवर बाइबल्स टू जेम्स 5:2। जेम्स 5:2, I'm reading from the Good News Bible. It says that your riches have rotten away, and your clothes have been eaten by the moths. Your gold and silver are covered with the rust, and this rust will be a witness against you and will eat
up your flesh like a fire. You have piled up your riches in the last days. तो यहाँ पे लिखा है जो तुम्हारा riches है, if your riches will be corrupted, your garments will be moth eaten, your golds and silvers will क्या वो क्या हो जाएगा, वो rust हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो riches है, ये दुनियादारी का जो हम लोग सोचते हैं हमेशा कि हम लोग ये करना है, वो करना है, पैसा कमाना है, ये सब क्या है, ये सब कोई यूज का नहीं है। ये लास्ट में ये सब ये सब कुछ चल जाएगा। तो ये वार्न करता है जेम्स रिच पीपल को। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज they live in pleasure, they kept back with wages by fraud, they nourish their hearts, they condemn and kill the just। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत सारे इनोसेंट पीपल होता है ना, बहुत सारा मासूम इंसान लोग होता है, और ये रिच पीपल लोग क्या करता है, ज्यादातर सब ऐसा नहीं करता है, बट कोई कोई सम ऑफ द पीपल, वो लोग क्या करता है, वो लोग को पूरा पैसे नहीं देता है, वो लोग जबरदस्ती सताता है अपने से कम इंसान लोगों को। पर यहाँ पे वो लोग को वार्न किया जाता है कि ऐसे नहीं करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि इन their treasures will be burned in the day of slaughter। ठीक है, वो लोग जो भी ट्रेजर वो लोग अपने पास रखा है, वो लोग वो सब तो लास्ट में तो चल ही जाएगा, तो ये सब का जरूरत नहीं है। तो वो लोग को वार्न कर रहा है कि तुम लोग जो ऐसा कर रहे हो मासूम इंसानों के साथ, दैट इज नॉट गुड। और गॉड अश्योरेंस देता है इनोसेंट पीपल को कि द क्राइज ऑफ देम विच हैव lived and enter into the years of the Lord will not resist। देखो कितना बड़ा सेंटेंस बोल रहा है कि जो भी अभी दुख तकलीफ में है, जिनको सताया जा रहा है, जो इनोसेंट है, गॉड सबका सबका क्राई सुनता है, सबका प्रेयर सुनता है। ठीक है, और द लॉर्ड विल नॉट रेसिस्ट देम, ऐसा लिखा हुआ है। The next one। यहाँ पे लिखा है कि हम लोग को कैसा बनना है। ठीक है, हम लोग को कैसा बनना है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, हाउ वी शुड बिकम। फर्स्ट वन इज इट इज रिटन, ब्लेसेड इज द मैन दैट endures temptation। ठीक है, हम लोग को टेम्पटेशन से बाहर निकलना है। Then second one is the one who looks into the perfect law, the law of liberty and perseverance, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing। तो जो सुनता है और वो जो करता है, वो he will be blessed in his doing। Okay? Next one is, if any man does not stumble in what he says, he is a perfect man, able also to bridle his whole body। तो यहाँ पे टंग के बारे में फिर से लिखा हुआ है कि अगर हम लोग स्टम्बल नहीं करते, हम लोग जो बोलते हैं वो हम करते हैं, और हम लोग को कंट्रोल रहता है अपने टंग में, तो ही इज अ परफेक्ट मैन। द लास्ट वन इट सेज, इफ एनी वन ऑफ यू डू err and one convert him, let him know that he which converted the sinner from the error of his way shall save a soul from death and shall hide a multitude of sins। तो यहाँ पे है, अगर तुम में से कोई किसी को कन्वर्ट करते हो, जो अगर तुम देख रहे हो किसी को कोई सफर कर रहा है, या कोई बहुत अ, पाप की तरफ जा रहा है, कोई बहुत गलत कर रहा है, और तुम उसको अगर समझाते हो, तो फिर यहाँ लिखा है कि he shall save a soul from death and shall have hide a multitude of sins। ठीक है, तो फिर हम लोग अब देखेंगे प्रैक्टिकल लेसन्स फ्रॉम जेम्स। तो जेम्स वो जीसस का स्टेप ब्रदर था ना। जेम्स वो जीसस स्टेप ब्रदर, बट ही एड्रेसेस हिमसेल्फ एज अ सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट। तो हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज्यादातर इमेजिन करते हैं, या अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, अपने आप को बोल सकते हैं, दिलासा देते हैं कि हम लोग कौन है, हम लोग प्रोडिगल सन्स हैं, जो हमेशा जो हमेशा कुछ पाप करके दूर चल जाता है, और गॉड क्या है, हमारा लविंग फादर है, जो हमेशा हम लोग को बुलाता है, मतलब तुम जब भी आओ हम हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसा ऐसा हम लोग
अपने आप को दिलासा देते हैं, है ना। पर क्या लिखा है कि बट द वर्कर्स ऑफ गॉड ऑलवेज कॉल देमसेल्व्स एज अ सर्वेंट्स, लेकिन the workers of God always call themselves as a servants, क्योंकि देखो डिफरेंस की हम लोग को इट्स इजियर टू ओबे योर बॉस देन योर पेरेंट। तो हम लोग को, अगर हम लोग किसी मास्टर को या किसी को बॉस को हम लोग ज्यादा सुनते हैं, राइट। हम लोग अपना पेरेंट को बोल देते हैं कि अरे नहीं ऐसा करके, मतलब मना कर सकते हैं, पर अपना बॉस को हम लोग जल्दी मना नहीं करते, अपना मास्टर को जल्दी मना नहीं करते। तो तो हम लोग अपने आप को, ठीक है, गॉड हमेशा एज अ फादर हमेशा हम लोग को बुलाते हैं अपने पास, बट हम लोग को उसको ग्रांटेडली नहीं लेना है। हम लोग को चूज करना है कि हम लोग एक फेथफुल सर्वेंट बने रहे और फेथफुल चाइल्ड ऑफ गॉड बने रहे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इट सेज जेम्स वार्न्स अगेंस्ट riches are are all all our faults focused on securing money introspect yourself। तो हम बाइबल देखेंगे from the I'm reading from a Good News Bible, chapter 4, chapter 4 का, हाँ चैप्टर 4 का 14, ओके। चैप्टर 4 का 14, it says that it says that whereas ye know not what shall be on the tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and vanishes away, ठीक है। तो फिर हाँ, ज्यादातर I'm not getting that verse, but it says कि we should not focus in today or tomorrow। हाँ, यही यही वर्स बोलता है कि हम लोग को आज में या कल में नहीं रहना चाहिए, हम लोग को नहीं प्लान करना चाहिए खुद से। इन गुड न्यूज इट्स टेलिंग 14, हाँ, it's telling that you don't even know what your life tomorrow will be। You are like a puff of smoke which appears for a moment and then disappears। तो यहाँ पे लिखा क्या है कि हम लोग को नहीं पता कि हम लोग आज रहेंगे कि नहीं, कल रहेंगे कि नहीं, बट हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर फोकस करते हैं कि कैसे हम लोग पैसे कमाए, राइट। कैसे हम लोग पैसे कमाए, कैसे हम लोग कुछ करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि अ, हम लोग बहुत थके हैं, ठीक है, वी आर वेरी टायर्ड एंड हम लोग क्या करते हैं कि अपने आप को बोलते हैं कि हम लोग आज बहुत थक गए हैं, वी विल नॉट रीड द बाइबल टुडे, वी विल रीड टुमारो। लेकिन अगर हम लोग का एक टेस्ट रहता है, तो जितना भी रात होता है, जितना भी हम लोग थके रहते हैं, हम लोग वी विल ट्राई टू स्टडी, थोड़ा तो पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि तुम्हारा एफर्ट्स कितना है कि तुम अपने पैसे के ऊपर या फिर तुम गॉड के ऊपर कितना एफर्ट्स डालते हो, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सेइंग वार्निंग अगेंस्ट द वर्ल्डलीनेस, आर वी स्टिल लविंग थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक सेक्युलर थिंग्स, डांसिंग, डेटिंग। तो फिर हम लोग का वर्ल्डलीनेस में कितना लाइफ रहता है ना, कि हम लोग ज्यादातर वर्ल्डली थिंग्स पे फोकस करते हैं, जिसमें हम लोग को खुद का प्लेजर मिलता है, बट पर हम लोग को ज्यादातर वर्ल्डली हम लोग को नहीं रहना चाहिए कुछ भी ऐसी चीज में जो जिसमें गॉड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। Practical lessons. Okay. These are the questions I'm leaving with today. Is कि if we believe the Sabbath, are we following it truly? Second one is if we believe that Jesus is able to keep us from falling, are we overcoming our temptation? The third is if we believe that God is omnipresent, do we behave the way we would if we could see Him around? These are the questions I'm leaving with you all today. And the last point is the man who brittles his tongue can brittle his whole body। तो एक जो अपना टंग पे कंट्रोल रखता है, वो अपने पूरे बॉडी पे कंट्रोल रख सकता है, क्योंकि हम लोग का टंग बहुत सारा सिन को लीड करता है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर अपना सिन कैसे करते हैं, अपना टंग के थ्रू से।
So may we ask the Lord to sanctify our mouth and keep us a guard at the door of our lips.